یہ مووی 2015 میں ریلیز ہوئی۔ کہانی کے شروع میں ہمیں ایک میکس نامی لڑکا دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک فائٹر تھا جس کی کوئی فیملی نہیں ہوتی، کیونکہ جب زمین تباہ ہوئی تھی تو اس کی فیملی ماری گئی تھی، اس لیے وہ اکیلا ہی بنجر زمین پر رہا کرتا تھا۔ میکس کچھ گاڑیوں کو اپنی طرف آتا ہوا دیکھتا ہے۔ ان لوگوں سے بچنے کے لیے میکس اپنی گاڑی میں بیٹھ جاتا ہے اور وہاں سے بھاگنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن تھوڑا دور جا کر وہ لوگ میکس کو پکڑ لیتے ہیں۔ وہ لوگ میکس کو اپنا قیدی بنا لیتے ہیں اور اپنے ساتھ لے جاتے ہیں۔ یہ ایک ظالم انسان کی آرمی ہوتی ہے۔ اس ظالم انسان کا نام امورٹن جوئے تھا۔ جب زمین اور اس پر رہنے والے لوگوں کا خاتمہ ہوا تو یہاں نہ کوئی رولز تھے اور نہ ہی گورنمنٹ۔ لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزار رہے تھے۔ امورٹن جوئے کے پاس کھانے، پانی اور فیول وغیرہ کی سب فیسیلیٹیز تھیں۔ امورٹن جوئے ان سب کا سربراہ تھا۔ اس کی آرمی اس کے لیے لڑتی تھی، لیکن امورٹن اور اس کی آرمی ایک بیماری میں مبتلا تھی اور نارمل نہیں تھے۔ انہیں خون کی ضرورت پڑتی تھی۔ پوری آرمی امورٹن کو اپنا گاڈ مانتی تھی۔ ان کے پاس فیول کی کثرت تھی، اس کے علاوہ ان کے پاس کچھ نہ تھا۔ بنجر زمین تھی اور خوراک کی بھی کمی تھی۔ امورٹن کے قبیلے کے علاوہ وہاں اور بھی قبیلے تھے اور وہ لوگ بالکل نارمل تھے۔ جب وہ لوگ میکس کو اپنا قیدی بناتے ہیں تو اس کی کمر پر یونیورسل بلڈ ڈونر لکھ لیتے ہیں، کیونکہ اس کا بلڈ گروپ او نیگیٹو تھا۔ میکس بھاگنے کی بہت کوشش کرتا ہے لیکن وہ پکڑا جاتا ہے۔ پھر امورٹن آتا ہے۔ اس کی سکن پر انفیکشن ہوا ہوتا ہے اور سانس لینے کے لیے اس نے ایک بڑا سا ماسک پہن رکھا ہوتا ہے۔ امورٹن کے لنگز اور لیور ڈیمیج ہوتے ہیں اور اسے سانس لینے میں مشکل ہوتی ہے۔ امورٹن جب باہر آتا ہے تو لوگ اس کے نام کے نعرے لگاتے ہیں۔ وہ اپنی مرضی سے لوگوں میں پانی چھوڑتا اور جب دل کرتا بند کر دیتا۔ اس کے بعد ہم ایک فیمیل فیروسا کو دیکھتے ہیں۔ وہ امورٹن کی بیٹی ہوتی ہے اور امورٹن کی آرمی کی کمانڈر بھی۔ فیروسا ایک ڈیل کے لیے قریبی علاقے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ جا رہی ہوتی ہے۔ انہوں نے اپنی گاڑیوں کو جنگ کے لیے ریڈی کر رکھا ہوتا ہے۔ فیروسا ٹینک ٹرک چلا رہی ہوتی ہے جبکہ باقی ساتھی اس کی رہنمائی کر رہے ہوتے ہیں۔ پلان کے مطابق فیروسا اپنا راستہ بدل دیتی ہے۔ امورٹن دیکھ لیتا ہے کہ فیروسا اپنا راستہ بدل چکی ہے۔ اسے فیروسا پر شک ہونے لگتا ہے۔ وہ ایک کیبن میں جاتا ہے۔ وہاں فلور پر لکھا ہوتا ہے کہ تمہارے بچے کمانڈر کی سیٹ کبھی نہیں سنبھال سکتے۔ امورٹن کی 4 بیویاں ہوتی ہیں۔ دراصل وہ اپنی جنریشن بڑھانا چاہتا ہوتا ہے اور انہیں جنگجو بنانا چاہتا تھا، لیکن فیروسا اس کی بیویوں کو بھی اپنے ساتھ لے کے جا رہی ہوتی ہے۔ یہ دیکھ کر امورٹن اپنی آرمی کو الرٹ کرتا ہے۔ امورٹن یہ جان چاہتا ہے کہ فیروسا اسے دھوکہ دے رہی ہے۔ امورٹن کی آرمی امورٹن کے لیے کام کرتی تھی۔ اس کی آرمی میں ایک شخص نیوکس تھا جو اس کا پیروکار تھا۔ وہ امورٹن کی ہر بات مانتا تھا۔ نیوکس بھی اسی بیماری میں مبتلا تھا جس میں بلڈ کی ضرورت پڑتی تھی۔ جو بھی امورٹن کی بیویوں کو واپس لاتا وہ امورٹن کی آنکھوں کا تارا ہوتا، اس لیے نیوکس امورٹن سے لویلٹی دکھانا چاہتا تھا۔ پھر کہانی میں دکھایا جاتا ہے کہ میکس کا بلڈ نیوکس میں ٹرانسفر کیا جا رہا ہوتا ہے۔ نیوکس خوش تھا کیونکہ اسے بلڈ کی ضرورت ہوتی ہے، اس لیے وہ میکس کو بھی اپنے ساتھ لے جاتا ہے اور اپنی گاڑی کے آگے باندھ لیتا ہے، اور میکس کے چہرے پر ایک آئرن ماسک لگا رکھا تھا۔ امورٹن کی آرمی فیروسا کا پیچھا کرنے لگتی ہے۔ نیوکس بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ان لوگوں کی لائف کا پرپس وار تھا۔ جنگ کرنا ان لوگوں کا شوق تھا۔ ان کے پاس بہت ڈینجرس ویپنز ہوتے ہیں۔ فیروسا پر راستے میں ایک اور قبیلہ اٹیک کر دیتا ہے کیونکہ اس جنگ کے پیچھے ہر قبیلے کا اپنا ایک پرپس ہوتا ہے۔ امورٹن اپنی بیویوں کے لیے فیروسا سے جنگ کرنا چاہتا تھا اور وہ قبیلہ اس ٹینک کے لیے جس میں فیول تھا اور وہ فیروسا کے پاس تھا، وہی ان کی کل دولت تھی۔ نیوکس سپیڈ سے گاڑی چلاتے ہوئے فیروسا کے پاس پہنچ جاتا ہے، لیکن فیروسا اس کی گاڑی کو ٹکر مارتی ہے اور پھر ڈسٹ اسٹارم آتا ہے۔ نیوکس فیروسا کو ہر حال میں پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ سوسائڈ بمبر بھی یوز کر کے فیروسا کو روکنا چاہتا تھا۔ سینڈ اسٹارم میں ہی یہ لوگ آگے جا رہے ہوتے ہیں۔ میکس جانتا تھا کہ بلاسٹ کی وجہ سے وہ بھی مارا جائے گا، اس لیے اس نے نیوکس کو روکنے کی پوری کوشش کی۔ تبھی دیکھتے دیکھتے نیوکس کی گاڑی ٹکڑے ٹکڑے ہو گئی۔ اب طوفان رک چکا تھا۔ میکس کو ہوش آ جاتا ہے، لیکن اس کے چہرے پر ابھی بھی آئرن ماسک لگا ہوتا ہے اور وہ نیوکس کے ساتھ بندھا ہوتا ہے۔ وہ نیوکس کو اٹھاتا ہے اور آگے چلنے لگتا ہے۔ وہاں میکس کو فیروسا کا ٹرک نظر آتا ہے۔ وہ فیروسا کے پاس جاتا ہے۔ وہاں امورٹن کی بیویاں بھی ہوتی ہیں۔ امورٹن کی ایک بیوی پریگننٹ ہوتی ہے۔ میکس ان لوگوں پر گن تان دیتا ہے اور انہیں قیدی بنا لیتا ہے۔ میکس سب سے پہلے ان سے پانی مانگتا ہے، پھر میکس ان سے کٹر مانگتا ہے تاکہ اپنے آپ کو چین سے آزاد کر لے جس سے وہ بندھا ہوتا ہے۔ امورٹن کی بیویوں میں سے ایک میکس کی ہیلپ کرتی ہے۔ وہ چین کو کاٹنے کی کوشش کرتی ہے لیکن اس سے کچھ نہیں ہو پاتا۔ امورٹن سب لوگوں کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے اور ان کی طرف تیزی سے بڑھ رہا ہوتا ہے۔ فیروسا وہاں سے نکلنے کے لیے میکس پر اٹیک کرتی ہے۔ ہوش میں آتے ہی نیوکس بھی فیروسا پر اٹیک کر دیتا ہے۔
वो फिरोसा को मारता है। न्यूक्स मैक्स की चेन काटता है। मैक्स फिरोसा का ट्रक लेकर भागने लगता है, लेकिन थोड़ा दूर जाते ही वो ट्रक रुक जाता है क्योंकि उसके टैंक ट्रक पर एक कोड लगा होता है जिसको थोड़े टाइम के बाद एक्टिवेट करना होता है और फिर ट्रक चलता है। और सिर्फ फिरोसा ही वो कोड जानती होती है। वो सब लोग ट्रक की तरफ भागते हैं और सारी बात मैक्स को बताते हैं, लेकिन मैक्स ये फिरोसा को अपने साथ लेके जाना चाहता था क्योंकि इमोटन अपनी बीवियों की वजह से उनका पीछा कर रहा होता है। लेकिन फिरोसा कहती है कि वो इनको भी अपने साथ लेकर जाएगी क्योंकि वो एक सेफ जगह पर जा रही होती है और वहाँ सर्वाइवल के चांस भी ज्यादा होते हैं। आखिरकार मैक्स उनको भी साथ ले जाने के लिए राजी हो जाता है। वो लोग वहाँ से निकलते हैं, लेकिन इमोटन की आर्मी अभी भी उनका पीछा कर रही होती है। ट्रक में कोई खराबी हो जाती है। मैक्स बाहर आकर इसे रिपेयर करता है। वो ट्रक ठीक हो जाता है। न्यूक्स भी फिरोसा के टैंक ट्रक पर चढ़ जाता है और फिरोसा पर अटैक कर देता है। इमोटन की वाइफ फिरोसा की हेल्प करती है। फिरोसा न्यूक्स को मारना चाहती है, लेकिन इमोटन की वाइफ फिरोसा को कहती है कि वह न्यूक्स को ना मारे। फिरोसा उसे नहीं मारती बल्कि अपने ट्रक से नीचे फेंक देती है। वो लोग तेजी से आगे बढ़ रहे होते हैं। ये लोग पहाड़ों के दरमियानी रास्ते से जा रहे होते हैं। तब फिरोसा मैक्स और इमोटन की वाइफ को छुपा देती है। इस इलाके में एक और कबीला रहता था जो बाइकर्स थे। फिरोसा और उस कबीले के दरमियान तय हुआ था कि वो इनके लिए बहुत सारा फ्यूल लाएगी। इसके बदले में वो लोग उसे वहां से सेफली जाने देंगे और वो पहाड़ी रास्ते पर ब्लास्ट कर देंगे ताकि इमोटन और उसकी आर्मी उन तक ना पहुंच सके। लेकिन जब बाइकर्स देखते हैं कि फिरोसा इतनी ज्यादा आर्मी के साथ आ रही है तो इनको खतरा महसूस होता है। फिरोसा मैक्स को सारी बात बताती है और वो मैक्स को वो कोड भी बता देती है। जब फिरोसा को खतरा महसूस होता है तो वो मैक्स को भाग जाने को कहती है और वो ऐसा ही करता है। बाइकर्स का कबीला वहां ब्लास्ट कर रहे होते हैं क्योंकि वो जानते थे कि इमोटन और उसकी आर्मी उनके एरिया में आ रही है। फिरोसा ट्रक पर चढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बाइकर्स फिरोसा पर अटैक कर देता है। फिर भी वो ट्रक पर चढ़ने में कामयाब हो जाती है। इमोटन के लिए रास्ता बिल्कुल बंद हो चुका होता है। बाइकर्स फिरोसा का पीछा करने लगते हैं। इमोटन अपनी आर्मी के साथ बंद रास्ते से आगे आने की कोशिश करता है। वहाँ इमोटन को न्यूक्स मिलता है। वो इसको अपने साथ शामिल कर लेता है। बाइकर्स कोशिश करते हैं कि किसी तरह ट्रक में आग लग जाए, लेकिन वो लोग उनका मुकाबला करते हैं। इमोटन ट्रक के पास आकर फिरोसा को मारने लगता है। तभी इसकी प्रेग्नेंट बेबी इसके सामने आ जाती है। इमोटन अपनी जनरेशन बढ़ाना चाहता है, इसलिए वो उसे कुछ नहीं कहता। न्यूक्स इमोटन का साथी बन चुका होता है, इसलिए वह फिरोसा के ट्रैक पर चढ़ने की कोशिश करता है। न्यूक्स के हाथ पर चेन लगे होने की वजह से वो अटक जाता है और गन जो उसने अपने हाथ में पकड़ रखी थी वो भी गिर जाती है। ये देखकर इमोटन को गुस्सा आता है। उस आर्मी में इमोटन का बेटा भी था। वो अपने वेपन से उन पर अटैक कर रहा होता है। ये जाकर सीधा ट्रक के स्टीयरिंग पर लगता है, जिसकी वजह से स्टीयरिंग निकलने वाला हो जाता है। प्रेग्नेंट लेडी हेल्प करती है, जिसकी वजह से ट्रक को मैक्स कंट्रोल में कर लेता है, लेकिन वो लेडी बाहर गिर जाती है। पीछे से इमोटन आ रहा होता है। क्योंकि वो अपनी प्रेग्नेंट वाइफ को मारना नहीं चाहता, इसलिए वो स्टीयरिंग घुमा लेता है। इमोटन वहाँ रुक जाता है, जबकि फिरोसा और उसके साथी आगे बढ़ जाते हैं। इमोटन की एक वाइफ न्यूक्स के पास आती है। न्यूक्स बहुत अपसेट हो जाता है। इमोटन की वाइफ इसे रिलैक्स करती है। न्यूक्स डिसाइड कर लेता है कि वो अब उनका साथ देगा। रात को फिरोसा मैक्स को अपने मकसद के बारे में बताती है। वो उसे बताती है कि जब वो छोटी थी तो वो एक सरसब्ज इलाके में रहा करती थी। इसी वजह से उस जगह का नाम ग्रीन एरिया था। वो अपनी फैमिली के साथ वहाँ रहती थी। फिर वहाँ इमोटन ने अटैक कर दिया और फिरोसा को अपने साथ ले आया और उसे अपनी बेटी बना लिया। वो कहती है कि मैं अपने खानदान के पास वापस जाना चाहती हूँ ताकि नॉर्मल इंसानों की तरह जिंदगी गुजार सकूं, और यहाँ के लोग तो जानवरों से कम ना थे। फिर वो लोग दलदली इलाके से गुजरते हैं। वहाँ उनका टैंक ट्रक फंस जाता है। इमोटन की आर्मी अभी भी उन लोगों के पीछे आ रही होती है। इसकी प्रेग्नेंट बीवी मर चुकी थी और उसका बच्चा भी। बच्चे के मर जाने की वजह से इमोटन बहुत गुस्से में आ जाता है। वो अपने जायंट बेटे को बताता है कि तुम्हारा एक भाई था जो मर गया, और ये बात जायंट बेटा सबको बताता है। उनका ट्रक अभी भी दलदल में फंसा होता है। उन्होंने बहुत कोशिश की कि ट्रक बाहर निकाल लें, लेकिन वो नाकाम रहे। इतनी देर में वो देखते हैं कि इमोटन का एक और साथी इनकी तरफ आ रहा होता है। मैक्स अपनी गन से निशाना लगाता है, लेकिन इसका निशाना खता हो जाता है। फिर फिरोसा निशाना बांधती है, जिससे उस शख्स की दोनों आईज डैमेज हो जाती हैं और वो ब्लाइंड हो जाता है। लेकिन वो शख्स रुकता नहीं, फिर भी वो इनकी तरफ बढ़ रहा होता है। फिरोसा और उसके साथी दलदल से टैंक ट्रक निकालने में कामयाब हो जाते हैं और वो आगे बढ़ जाते हैं।
फिर वो लोग एक टावर के पास पहुंचते हैं जहां एक लेडी हेल्प के लिए पुकार रही होती है। मैक्स जान जाता है कि ये एक जाल है जिसमें उनको फंसाया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद फिरोसा बाहर आ जाती है। कुछ बाइकर्स भी वहां आ जाते हैं। फिर पता चलता है कि टावर के पास जो लेडी थी और जो हेल्प के लिए पुकार रही थी वो फिरोसा की माँ होती है। वहाँ एक बूढ़ी औरत थी जिसके पास कुछ बीज थे। ये दुनिया के आखिरी बीज थे जो फल और सब्जियां उगाने के लिए थे, लेकिन उनके पास कोई ऐसी जमीन नहीं थी जहाँ उन बीजों को बोया जा सकता। फिरोसा यहाँ बहुत उम्मीद के साथ आई थी, लेकिन वहाँ की जमीन भी बंजर थी। वो ये देखकर बहुत परेशान हो जाती है और रोने लगती है। फिरोसा की माँ उसे बताती है कि जिस जलजली इलाके से तुम गुजर कर आई हो, हमने ये बीज वहाँ उगाने थे, लेकिन वो जमीन भी अब बंजर हो चुकी है। रेडिएशंस के इफेक्ट की वजह से वो जमीन बंजर हो गई। रात में वो सब फैसला करते हैं कि वो इन बीजों और औरतों को लेकर वहाँ जाएंगे जहाँ जिंदगी मुमकिन हो और इलाका सरसब्ज हो। मैक्स फिरोसा को गुड बाय कहकर अपने सफर पर जाने लगता है। अगली सुबह वो मैक्स को एक बाइक देते हैं और खुद भी बाइक पर बैठ कर निकल जाते हैं। फिर मैक्स को ख्याल आता है कि उसे फिरोसा और उसके साथियों की हेल्प करनी चाहिए। वो अपनी बाइक वापस उनके पास ले जाता है। मैक्स फिरोसा को समझाता है कि तुम उसी ग्रीन एरिया में वापस चली जाओ जहाँ से तुम आई हो, क्योंकि जिंदगी वहाँ ही मुमकिन है। लेकिन वहाँ उन्हें इमोर्टन से खतरा होता है। वो मैक्स पर ट्रस्ट कर लेती है और वापस वहाँ जाने लगती है जहाँ से वो सब आए थे, यानी इमोर्टन के एरिया से। जब इमोर्टन को ये बात पता चलती है कि वो सब वापस जा रहे हैं तो उनके दरमियान जंग शुरू हो जाती है। मैक्स इमोर्टन को मारने की कोशिश करता है और वो बूढ़ी औरत मर जाती है। फिर फिरोसा इमोर्टन के फेस पर लगे मास्क को खींच के उतार देती है और इमोर्टन का चेहरा बहुत खौफनाक दिखने लगता है और वो वहीं मर जाता है। न्यूक्स खुद को सैक्रिफाइस करने के लिए अपनी गाड़ी को ब्लास्ट कर देता है। फिरोसा भी शदीद जख्मी हो जाती है, लेकिन वो अपने इलाके में पहुंच जाती है। इमोर्टन की आर्मी इमोर्टन की मौत की खबर सुनकर बहुत खुश हो जाती है। जब वो देखते हैं कि फिरोसा वापस आ गई है तो वो बहुत हैरान होते हैं। वो फिरोसा को अपना लीडर बना लेते हैं। मैक्स अपनी मंदिर की तरफ बढ़ जाता है। फिरोसा उसे जाते हुए देखती है। वो अपने इलाके में मौजूद ग्रीनरी वाले एरिया को देखती है। अब वो लीडर बन चुकी थी तो वो फ्यूचर में सब सेट कर देना चाहती थी। इसके साथ ही मूवी खत्म हो जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।